نہ دنیا آپ کی کامیاب، نہ آخرت آپ کی کامیاب. اٹ از نیور بی یاری. تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. لغو کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا لغو کی بات اس طرح اگر میں کروں تو ایک بات اور بھی سن لو. یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. اتنی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ شاید یہ بات آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے، بڑے غور سے سننا. بڑے سرچ کے بعد میں یہ چیز حاصل کیا ہوں. دیکھو ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے، ہے نا؟ کیا بولے ہوں گے بچے ہمارے گھروں کے اندر؟ ہیپی نیو ایئر. اسکول میں بول رہے تھے ہمارے ٹیچر، امی ہیپی نیو ایئر ہے، ہیپی نیو ایئر. ہمارے دوست کیک لا کر کاٹتے، ابو جی آپ بھی لے کر کے آنا کاٹنا. اب ابو جی بولے نہیں بیٹا، امی صاحب بول رہے تھے مسجد میں کہ دوسروں جیسا کام نہیں کرنا، ہم لوگ ہیپی نیو ایئر نہیں منائیں گے. تو اما جی بول رہی ہیں جی کیا ہے جی، تھوڑا سا لا کر کے کاٹ دیے بچے کا دل ہو جاتا. ہم کون سا ڈانس کرنے جا رہے ہیں، ہم خالی کیکا تو کاٹ رہے ہیں، تھوڑا سا کر رہے ہیں. یہ تھوڑے تھوڑے میں بہت خوش ہو رہا، یہ تھوڑے تھوڑے میں ہی بہت خوش ہو رہا. اور ہمارے نوجوان تو بہت سارے ایسے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے. ہیپی نیو ایئر بھائی، نیا سال مبارک، ہے نا؟ نیا سال مبارک. اب میں ذرا نیا سال کی ہسٹری بیان کرنا. سنو ہماری حالت کیسی ہے نا انسانوں کی کہ وہ بھیڑ ہوتا نہیں، بھیڑ بزرگ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے. بھیڑ جو آگے والا ہوتا نہیں، وہ اگر کھڈے میں گر گیا تو کچھ پیچھے پورے جگہ کھڈے میں گر جاتا. آگے والا جس طرح موڑا نہیں، وہ پورے پیچھے اس طرح موڑتے. ہماری حالت وہی ہے کہ جو پہلے لوگ غلطی کر رہے ہیں، آج جو لوگ غلطی کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں بس ہم کرتے جا رہے ہیں. اتنا نہیں سوچتے ہیں کیوں کرنا ہے، کہیں کو کرنا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے. تعلیم یافتہ گریجویٹ ہے، ڈگری میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں اچھا رینک آ رہا، مگر یہ چیز سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. آپ کو بیان کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو کیلنڈر ہے نا، کیلنڈر، یہ ہیپی نیو ایئر جو آتا ہے، یہ سال بدلتا ہے، اس کا سسٹم کہاں سے؟ کیلنڈر سے. کیلنڈر ہے نا. اب سنو اور سی بات کو، کیلنڈر سے ہے. اس دنیا کے اندر مختلف کیلنڈر پائے جاتے ہیں. عیسوی کیلنڈر جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، عیسوی سن 2024 یہ عیسوی کیلنڈر ہے. اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2024 سال ہو چکے ہیں. دنیا کے بنے ہوئے 2024 سال نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2024 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے یہ کیلنڈر بنایا. اس دنیا کے اندر بقرمی کیلنڈر ہے، بقر مجید کے نام پر. اس رومی کیلنڈر ہے سکندر اعظم کے نام پر، ہے نا. بہت سارے کیلنڈر پائے جاتے ہیں. یہود کا کیلنڈر ہے، سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے شروع ہوئی ہے. اور اسلامی کیلنڈر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیلنڈر بنایا تھا. اور اس کو شروع کہاں سے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا نا، وہاں سے شروع کیا، وہاں سے ہجری، یعنی کہ 1445 چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1445 سال ہو گئے. اس دنیا کو بنے ہوئے 1445 سال نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1445 سال ہو چکے ہیں. اور جو مہینہ ہمارا ہے اسلامک مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو عربک مہینے ہیں، ان کی ہسٹری تو اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے. زمین و آسمان کی تخلیق جب سے ہے، یہ مہینے تب سے کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ عرش والے نے بنایا، یہ اوپر والے نے بنایا ہے. جس نے دنیا بنائی ہے اسی نے مہینے بنائے. لیکن یہ مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ مہینے انسان نے بنائے. اب چونکہ دنیا میں رہتے ہیں تو دونوں کیلنڈر لے کر چلنا پڑتا ہے. ہماری اسلامک چیزیں تو اسلامک کیلنڈر سے ہیں، مگر چونکہ دنیا کے اندر ہے تو سیلری ملے گی یہ والے کیلنڈر سے، بچوں کی فیس بھرنی ہے یہ کیلنڈر سے، بہت ساری چیزیں کرنی ہے یہ کیلنڈر سے، دودھ والے کو پیسے دینے یہ کیلنڈر سے. تو اس کیلنڈر کے بارے میں تھوڑا جان لیجیے اور وجہ بھی جان لیجیے میں کیوں بیان کر رہا ہوں. دیکھو جولیس سیزر نام کا ایک بادشاہ، اس
बादशाह से पहले सिस्टम ऐसा था कि जब साल खत्म होता तो साल के आखिरी दिन साल भर के जितने क्राइम करने वाले लोग होते, जुर्म करने वाले लोग होते, जिनको सजा देनी होती, वो लास्ट दिन सजा देते। यानी कोई आदमी मर्डर कर दिया, उसको जेल में डाल दिए, कोई आदमी कुछ कर लिया, जेल में डाल दिए। साल भर कुछ नहीं कहते, लास्ट दिन साल के आखिर में पूरों को एक साथ सजा देते। तो वो लास्ट दिन मातम वाला दिन हो जाता। किसी के खानदान के बंदे को फांसी, किसी का हाथ काट दिए, किसी का ये कर दिया, किसी को, तो मातम वाला दिन बन गया धीरे धीरे, क्योंकि लास्ट दिन पूरी सजा सुनाई जा रही। जब जूलियस सीजर नाम का बादशाह आया जो ईसाई था, तो उसने कहा कि भाई ये सिस्टम बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं क्या ऑर्डर दे रहा हूं कि जो इस वक्त जुर्म करेगा, गुनाह करेगा, उसको सजा उसी वक्त मिल जाएगी। हम साल भर के लिए पेंडिंग नहीं रखेंगे कि रखेंगे जेल में, खाना खिलाएंगे, फिर साल भर के बाद लास्ट दिन सजा देंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए लास्ट दिन जो आज तक लोग मातम का दिन मनाते थे, मैं कह रहा हूं खुशी का दिन मनाओ। तो पूरे लोग लास्ट दिन खुशी मनाना शुरू किए, और वो खुशी होते 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 किसमें बदल गई? हैप्पी न्यू ईयर। अब समझना, अब मजा आया? कहो भाई हैप्पी न्यू ईयर, कहो जी, अब कहो हैप्पी न्यू ईयर। कुछ जानते नहीं, कुछ पूछते नहीं, कोई लॉजिक नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। इस टाइप से लग रहा है हैप्पी न्यू ईयर। ये वजह। और ये महीनों के नाम बताओ आप लोगों को। पहले सिर्फ 10 ही महीने थे ये ईस्वी कैलेंडर के अंदर, सिर्फ 10 महीनों का एक साल माना जाता था, 10 महीनों का एक साल। बाद में इसमें फिर और महीने बढ़ाए गए, है ना। इस महीने कैलेंडर का पहला महीना क्या है? जनवरी। जनवरी, जनवरी का एक नाम रखे। रोम के अंदर जहां जूलियस सीजर हुकूमत करता था, कैपिटल सिटी था रोम ईसाइयों का, उस वक्त का सुपर पावर। रोम के अंदर एक बुद्ध था, उसका नाम था जेनस। क्या नाम था? सुनो आज श्री, जेनस नाम था उस बुद्ध का। उस बुद्ध के 2 चेहरे थे, एक सामने चेहरा, एक पीछे चेहरा, 2 चेहरे थे बुद्ध के। अब चूंकि जनवरी 1 महीना, तो एक को टाटा बाय बाय और एक को वेलकम, यानी एक साल को गुजर वाला, एक साल आने वाला, तो इसको फर्स्ट पर रखा। कहा कि इसका नाम रखेंगे जनवरी, और किसके नाम पर? बुद्ध के नाम पर, जेनस बुद्ध के नाम पर रखा गया है जनवरी, जेनस बुद्ध के नाम पर। फिर उसके बाद फरवरी है। फरवरी रोम की एक देवी थी, फेब्रुरिया नाम था उसका, फेब्रुरिया, उस देवी का नाम। ये औलाद की देवी मानी जाती थी, औलाद यही देवी दे रही, अकीदा था उनका, तो उस देवी के नाम पर रखे फरवरी। मार्च रोम का एक बुद्ध था जिसका नाम था मार्स, और बारिश का देवता माना जाता था, तो इसके नाम पर रखे मार्च। अप्रैल जो है, स्प्रायर बाबा ने खिलना, रोम के अंदर कलियां खिलती थी, है ना, कलियां खिलती थी, तो उस सिचुएशन पर नाम रखे अप्रैल। मई, रोम की एक देवता की मां का नाम था मैया, उसके नाम पर रखे मई। जून, रोम के किसी देवता की बीवी का नाम था जूनो, तो उसके नाम पर रखे जून। जुलाई, रोम का बादशाह जो जूलियस सीजर था, उसने अपने आप को हिस्ट्री में दाखिल करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, उसने अपने नाम पर जुलाई रखा, क्योंकि उसका नाम जूलियस था, जूलियस सीजर। अगस्त, जूलियस सीजर का भतीजा था अगस्टस। अगस्टस ये जूलियस सीजर का भतीजा था, तो उसने अपने आप को मशहूर करने के लिए, फेमस करने के लिए अपने नाम पर एक महीने का नाम रखा अगस्त। सितंबर, रोम सितंबर कहते थे, रोम के लोग सितंबर। आज भी इंग्लिश के अंदर देखो तो सितंबर नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है? सितंबर लिखा रहता है, क्योंकि हिस्ट्री में इसका तो फर्स्ट बनाया गया था सितंबर, है ना। तो जब 10 ही महीने थे तो सितंबर का नंबर 7वें पर था, इसलिए सितंबर। अक्टूबर, जब 10 महीने थे तो इसका नंबर था 8वां अक्टूबर। नवंबर, जब 10 महीने का कैलेंडर था तो इसका नंबर था 9वां। और दिसंबर, जब 10 महीने का कैलेंडर था तो इसका नंबर था 10वां। बात समझ में आ गई कि इस तरीके से ये पूरे नाम रखे गए। और हम लोग शौक से मुहर्रम, सफर, ये सब तो याद भी नहीं होगा हमको। हम तो जनवरी फरवरी जानते हैं, है ना, जनवरी फरवरी हम लोग जानते हैं, जनवरी फरवरी हम लोग जानते हैं। दिन भी देख लीजिए, संडे,
संडे सूरज का दिन, मंडे मून का दिन, चांद का दिन, ये सब नाम है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे, मुसलमान हैप्पी न्यू ईयर मना रहे। सोचो एक साल गुजर गया, कुछ किए नहीं, मौत के और करीब आ गए, मरने वाले जो अल्लाह ने टाइम दिया है उस टाइम में से एक साल और भी निकल गया, एक साल और भी गुजर गया उस टाइम में से, और हम मना रहे हैप्पी न्यू ईयर, है ना। अब कोई बंदा यहाँ से हैदराबाद जाए, पुलिस उसको पकड़ कर लेकर जाएगी, फला केस में उसको पकड़ा गया, अभी जुर्म साबित हुआ है, या तो उनको फांसी होगी या तो जिंदगी मिलेगी, उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, और वो जहां पहुंच रहा है हर चौराहे पर भाई मुबारक मुबारक, अच्छा लगेगा, मुबारक मुबारक। हमारी हालत नहीं है ना कि हम अपने मौत के करीब हो रहे हैं। अगर 60 साल जिंदगी है तो एक साल और गुजर गया, अब मौत के और करीब है और मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक मौत के करीब पहुंच गए, मुबारक मौत के करीब पहुंच गए। यही तो सिचुएशन बन सकती है सब लोग। तो अल्लाह ने क्या कहा? दूसरी सिफत कामयाब होने वाले मोमिनों की, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। अब मुझे जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करनी है क्योंकि वक्त मुझे टाइम दे दिया गया, 10 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कामयाब होने वाले मोमिनों की दूसरी निशानी यह है कि वो लग़्व काम से एराज करते हैं। तीसरी चीज वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने मालों में से ज़कात निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं, माल को पाक साफ करते हैं। अगर माल में से ज़कात नहीं निकालेंगे तो माल गंदा होगा, वो खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो गंदगी खिला रहे हैं, क्योंकि ज़कात हमारे माल को पाक साफ करता है। तो कामयाब होने वाले मोमिनों की तीसरी निशानी है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने मालों में से ज़कात निकालते हैं। चौथी सिफत क्या है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों को वही इस्तेमाल करते हैं जहाँ इस्तेमाल करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, जहाँ इस्तेमाल करने का हुक्म रसूल ने दिया है। जहाँ इस तरीके से निकाह करके अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करते हैं, गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं करते हैं, ये कामयाब होने वाले मोमिनों की निशानी। हमारे नौजवान समझ लें इस चीज को, है ना, कोई क्लियर कह रहा हूं, तब खुल करके कह रहा हूं। हमारे नौजवान बड़े चक्करों में पड़े हुए हैं, बड़े चक्करों में, है ना। पहले वो क्या होता है कि पहले मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराहट के बाद वो नंबरों के तबादले होते हैं, नंबरों के तबादले के बाद फिर और चीजों से मिलन जुलन होता है, मुलाकातें होती है, चैटिंग होती है। कोई पूछे भाई क्या कर रहे हो? नहीं हम लोग गलती बात नहीं कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम दीन की बात कर रहे हैं, रात रात भर जा करके दीन की बात कर रहे हैं।